हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बताऊंगी और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 9 स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव लर्न हाउ टू डिवाइड द पॉजिटिव इंटीजर्स बाय अनदर। वी आल्सो नो दैट द क्वेश्चंस ऑफ सच डिविजन्स मे बी एन इंटीजर्स और अ फ्रैक्शन. Example is given 6 divided by 2. So we can also write 6 upon 2 or 6 divided by 2. So 2 ones are 2, 2 threes are 6. So therefore answer is 3. Here we have 5 divided by 3. So 5 upon 3. So therefore 3 ones are 3. But here we cannot divide. Therefore when we do the division, so we get 1 plus 2 upon 3 is answer. So I'll explain you this. 5 divided by 3, 3 ones are 3, 5 minus 3 is 2. So therefore 1 is whole number plus 2 upon 3. Okay. On the number lines we can show negative integers on the left of the 0. Means 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स दिखाते हैं. And we can show the part of integers also in the same way. और ये part of integers है whole numbers के बीच में, वो भी हम उसी तरह से ही दिखाते हैं. So here the numbers negative 5 upon 2, negative 3 upon 2, 3 upon 2 and 5 upon 2 are shown on the number line. Number lines पे हमने देखा है, numbers दिखाए हैं. And note that negative 1 upon 2 and negative and positive 1 upon 2, negative 1 upon 2 and positive 1 upon 2. Here is given 3 upon 2 and negative 3 upon 2, negative 5 upon 2 and 5 upon 2 are mutually opposite numbers. ये numbers opposite है. Like अगर आप देखोगे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है positive 3 upon 2 एंड नेगेटिव 3 अपॉन 2, ये म्यूचुअली अपोजिट नंबर है. जैसे 1 और नेगेटिव 1, ये भी अपोजिट नंबर्स है. ठीक है. तो नाउ दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस नेगेटिव 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. और जब अपोजिट नंबर्स होते हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं. सो 3 अपॉन 2 प्लस नेगेटिव 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. नेगेटिव 5 अपॉन 2 प्लस पॉजिटिव 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. इसके बाद हम देखेंगे द पेयर ऑफ द अपोजिट नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द पेयर ऑफ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स नंबर्स. तो वी हैव सीन दैट द नेगेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 1. प्रैक्टिस सेट 8 में हमने देखा था कि नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव है. ओके. So if the two sides of the equations are divided by negative 1, so we get the equations negative 1 is equal to 1 upon negative 1. Therefore, the quotients of the division 1 upon negative 1 is negative 1. Hence, we see that 6 multiplied by negative 1 is equal to 6 multiplied by 1 upon negative 1 is equal to 6 ones are 6 and negative 1 will remain as it is. So answer is 6 upon negative 1. Okay, now we will see that how to divide any positive integers by a negative integer. So this is positive integer by negative. So 7 upon negative 2 is equal to 7 multiplied by 1 and negative 1 multiplied by 2. So 7 multiplied by 1 upon negative 1 multiplied by 1 upon 2 is equal to 7 upon 1. 7 ones are 7 and negative 1. So here we have negative 1. Then negative 7 upon 1 multiplied by negative 1 multiplied by 1 upon 2. So here we will get 7 multiplied by negative 1. So see, 7 upon 1 will remain as it is and here
negative 1 multiplied by 1, so 1 multiplied by 1 is 1 and negative multiplied by positive is negative, therefore this is negative 1, जो हमने practice set 8 में सीखा है. Now and 2 ones are 2 will remain as it is, so 7 ones are 7, positive multiplied by negative is negative and 2 will remain as it is in denominator. So answer is negative 7 upon 2. चलिए तो आप देखते हैं टू डिवाइड एनी नेगेटिव इंटीजर्स बाय अ नेगेटिव इंटीजर. हमने यहाँ देखा था पॉजिटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर. अब हम देखेंगे नेगेटिव इंटीजर बाय नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव से ही हम डिवाइड करेंगे. ओके, लाइक negative 13 divided by negative 2. So negative 1 multiplied by 13 and negative 1 multiplied by 2 is equal to negative 1. So here negative 1 is given, so we will write this as it is, multiplied by 13 multiplied by 1 upon 2. So negative 1 multiplied by negative 1 upon 1 multiplied by 13 upon 2 is equal to 1 multiplied by 13 upon 2. So 13, 1 13s are 13 and 2 will remain as it is. So this way we will get this answer. Similarly, verify that negative 25 divided by negative 2. So 25 upon 4, negative 25 upon 4. So in answer we see that negative 13 upon negative 2 will remain as it is, but only they will change into positive. Similarly we could see here negative 25 upon negative 4. So answer is positive 25 upon 4. Here we have negative 18 upon negative 2 is equal to 18 upon 2. So 2 ones are 2, 2 nines are 18, so answer is 9. तो आपने देखा होगा दोनों इंटीजर्स जब नेगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है तो आंसर हो गया पॉजिटिव. हियर वी कैन नॉट डिवाइड दिस, देयरफॉर आंसर विल रिमेन एज इट इज. यहाँ पर हम डिवीजन कर सकते हैं, इसीलिए आंसर 9 है. ओके, व्हेन वन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो इंटीजर, इट इज customary to write the denominator of the question as a positive integer. This line is very important. आप लोग इसको अंडरलाइन करके रखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, 2 ऑप्शंस मैंने दिए हैं, कोई भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. 7 upon negative 2 is equal to negative 7 upon 2. So answer will remain as it is, but the negative sign we have to write in numerator. Negative 11 upon negative 3. So answer is 11 upon 3. So this is positive as it is given here, and also this we should. Okay. Now we will continue the next. Very important points to remember. The rules of divisions of integers are like the rules of multiplications of integers. Same division methods, rules and also the multiplication rules are equal. They are same. We cannot divide any numbers by 0. The quotients of 2 positive integers is a positive number. The quotient of 2 negative integers is positive number. The quotients of the positive integers and the negative integers is always a negative number. So these are very important points to remember. चलिए हम प्रैक्टिस सेट 9 अब स्टार्ट करते हैं. सॉल्व negative 96 डिवाइडेड बाय 16. अभी हम इसको पहले नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद एक एक सम स्टार्ट करेंगे. negative 96 डिवाइडेड बाय 16, इसको हम वर्टिकली लिखते हैं. negative 96 upon 16. So 16 table we will say till 96. So 16 6 are 96. Therefore 16 1s are and 16 6 are 96.
So answer is negative 6 upon 1 is equal to negative 6. And second sum, 98 divided by negative 28. So 98 divided by negative 28. अब हम इसको क्या करेंगे, 98 divided by negative 28. So we have to look at the unit place. Both are 8, so divided by 2. So 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 1 left, 2 9s are 18. Then after 7 1s are 7, 7 2s are 14 and 7 7s are 49. क्या किया मैंने, दोनों नंबर को 7 से डिवाइड किया है. सो हियर आई गॉट 7 एंड 2. यहाँ पर हम देखेंगे नेगेटिव है, सो देयरफॉर 7 अपॉन नेगेटिव 2. और फाइनल आंसर में हम इसको चेंज करेंगे नेगेटिव 7 अपॉन 2. तो दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके. थर्ड सम है नेगेटिव 51 डिवाइडेड बाय 68. So negative 51 upon 68 and we know that 51 और 68 ये 17 के टेबल में आते हैं, इसीलिए हम देखेंगे 17 3s are 51 and 17 4s are 68. तो इसीलिए 3 upon 4 नेगेटिव साइन हम लिखेंगे इस तरह से. सो नेगेटिव 3 upon 4 इज आवर फाइनल आंसर. Fourth sum is 38 divided by negative 57. So 38 divided by negative 57. अभी हमको देखना है कि 38 और 57 कौन से टेबल में आते हैं. So 38 and 57 falls in 19's table. 19 2s are 38 and 19 3s are 57. तो therefore direct also we can do, जैसे हमने ऊपर किया है. और आपको अगर नहीं समझ में आया है तो मैं यहाँ पर दूसरे मेथड से दिखाती हूँ. डिवाइडेड बाय 19. सो 19 2s are, so 2s are we write here, and 19 3s are 57. सो 19 3s are 57. ठीक है, तो ये 2s are अपॉन 3s are नेगेटिव 57. सो नेगेटिव हम यहाँ लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू आवर रूल हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे नेगेटिव साइन को, नेगेटिव 2 अपॉन 3. ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. या डायरेक्ट आप टेबल अगर पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 19 2s are 38, 19 3s are 57, तो 2 अपॉन 3 आ गया. नहीं पता है तो हम यहाँ पर 19 को लिखकर इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. फिफ्थ सम नेगेटिव 85 डिवाइडेड बाय 20. नेगेटिव 85 डिवाइडेड बाय 20. अभी यहाँ पर देखिए 20 और 85 किसी टेबल में नहीं है, इसीलिए हम देखेंगे यूनिट प्लेसेस. यूनिट प्लेस पे है 5 and 0. 5 and 0 आर द बोथ फॉल्स इन 5 टेबल. देयरफॉर 5 के टेबल से हम डिवाइड करते हैं. सो डिवाइडेड बाय 5. 5 4s are 20. और यहाँ पर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पर वर्टिकली डिवाइड करेंगे. 5 1s are 5, लेफ्ट 3, ये 5 को नीचे ले लीजिए. 5 7s are 35 माइनस 17 आंसर हमको मिला है, तो 70 वी विल राइट हियर. तो 5 17s are 85, देयरफॉर 17 एंड आंसर इज नेगेटिव. देखिए नेगेटिव साइन हमको यहाँ कंटिन्यू करना है. सो नेगेटिव 17 अपॉन 4. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा, इसीलिए हम यहीं पर इसे स्टॉप करेंगे. सो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर इज 17 अपॉन 4. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ सम. सिक्स्थ सम मैंने लिख लिया है. नेगेटिव 150 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 25. सो नेगेटिव 150 डिवाइडेड बाय नेगेटिव
25। वेरी सिंपल, 25 के टेबल में 150 है, 25 सिक्स जा, देयरफॉर 25 वन जा 25, 25 सिक्स जा करिए, या हम इस तरह से डिवाइड करेंगे 25 से बोथ साइड। 25 वन जा 25 एंड 25 सिक्स जा, दोनों नंबर नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल जो दोनों नंबर नेगेटिव है वो होते हैं पॉजिटिव। सो दिस इज आवर आंसर। तो फाइनल आंसर में हम लिखेंगे ओनली 6, क्योंकि हर नंबर के नीचे इमेजिनरी 1 होता है एंड दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट, इसीलिए हम यहाँ का इमेजिनरी 1 मैंने निकाल दिया है 1 को, और सिंगल नंबर 6 हम लिखेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं 7th सम के लिए। 7th सम है 100 डिवाइडेड बाय 60। सो 100 डिवाइडेड बाय 60, तो इसमें हम सिंपल फॉर्म में करेंगे इसको, दोनों ज़ीरो हम कट कर देते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, सो 5/3, दोनों पॉजिटिव है इसीलिए आंसर में भी पॉजिटिव रहेंगे। आंसर आ गया 5/3। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, बहुत सिंपल सम्स हैं बच्चों, आप लोगों को बहुत इजीली आ जाएंगे। हाँ, आप ट्राई करते रहिए। 8th सम है 9 डिवाइडेड बाय -54। हम लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय -54। सो 9 टेबल देखिए, 9 के टेबल में 54 है, 9 वन जा 9 एंड 9 सिक्स जा 54। सो 1/6 नेगेटिव को यहाँ कंटिन्यू करना है। अब आंसर में हम क्या करते हैं, जब नीचे नेगेटिव है उसको हम ऊपर शिफ्ट करते हैं और इस तरह से लिखते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू अवर रूल वी आर राइटिंग। So therefore -1/6 is our final answer. Second sum देखिए, write 3 divisions of the integer such that the fractional form of each will be 24/5। तो हमें आंसर क्या चाहिए, जैसे हमने अभी सम सॉल्व किए थे 6/5, 1/63, ऐसे हमको यहाँ दिया है 24/5। तो आंसर शुड बी 24/5। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कौन से डिवीजन ऑफ इंटीजर्स लेते हैं, तो हम करेंगे अभी 24/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, आंसर आ गया 24/5। दिस मीन्स 24 डिवाइडेड बाय 5। ओके, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, तो आंसर 24/5 ही आएगा। या हम दूसरा मेथड है लिखेंगे 24/5 मल्टीप्लाइड बाय 2 लीजिए। सो 24 2 जा 48 एंड 5 2 जा 10। तो इसको हम लिखेंगे 48 डिवाइडेड बाय 10। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इसका भी आंसर 24/5 ही आने वाला है। देन ऑल्सो यू कैन टेक 24/5 multiplied by 3, तो 5 3 जा 15 एंड 24 3 जा 72। सो नेगेटिव भी ले सकते हैं, आपको नेगेटिव लेना है तो, बट दोनों नेगेटिव लेना है क्योंकि हमारा रूल कैसे है, दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, और ये आंसर पॉजिटिव है, रिमेंबर दैट। सो देयरफॉर -72 मल्टीप्लाइड बाय -15। ठीक है, ये भी हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप और भी बढ़ा सकते हैं। मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए, 6 से कीजिए, एनी नंबर यू कैन टेक फॉर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड सम भी हमारा सेम रिलेटेड टू सेकेंड सम है। देखिए, राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी -5/7। इसमें दोनों पॉजिटिव थे, बट हियर वी हैव -5/7। तो रिमेंबर अकॉर्डिंग टू अवर रूल हमको एक नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव है, तो हमको एक नंबर नेगेटिव ही लेना है। तो जैसे हम लिखेंगे -5/7 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो -5/7। तो इसको कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाइड बाय
7। तो अब इस तरह से लिखो। या नेक्स्ट -5/7 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो हियर 2 5s are 10 10 is -10 and 7 2s are 14. So again we will get here -10 multiplied by 14. Next -5/7 multiplied by 3. Both side we have to multiply with 3. 5 3s are 15. नेगेटिव को ले लो साथ में. 7 3s are 21. So answer is, final answer is -15 multiplied by 21. ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स मिल गए हैं. ठीक है, इस तरह से आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो. तो बहुत ही सिंपल मेथड है. हाँ, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. फोर्थ सम बहुत ही सिंपल है. द फिश इन द पॉन्ड्स बिलो कैरी सम नंबर्स. सो चूज एनी 4 pairs एंड कैरी आउट 4 multiplications with those numbers. Now choose for the other pairs and carry out the divisions with these numbers. For example, if जो हमको यहाँ पर पॉन्ड दिया है, इसमें से फिश ने नंबर्स कैरी किए हैं, डिफरेंट नंबर्स कैरी किए हैं. वो नंबर्स हमको सिलेक्ट करने हैं और 4 मल्टीप्लिकेशन के सम्स करने हैं और 4 डिवीजन के सम्स करने हैं. तो यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल ऑलरेडी हमें दिया है. -13, देखिए -13 भी है और -15 भी है. तो दोनों नंबर को लेकर यहाँ एक सम किया है. सो -13 मल्टीप्लाइड बाय -15, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है 195. नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज़ पॉजिटिव. जो हमने सम सीखे हैं ये उसी के ऊपर डिपेंड है. सेकेंड सम देखिए, -24 डिवाइडेड बाय 9. -24 डिवाइडेड बाय +9. ठीक है, सो -24 डिवाइडेड बाय 9. सो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया 3 से. 3 3s are 9 and 3 8s are 24. सो 8/3 आंसर में आ गया -8/3. तो इसी तरह से हमको अभी नंबर सिलेक्ट करने हैं और हम सम्स कंटिन्यू करेंगे. तो मैं लेती हूँ अब -24 एंड -8. सो -24 मल्टीप्लाइड बाय -8. तो इसे हम दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो आंसर आएगा उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, बिकॉज नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव. सो 24 मल्टीप्लाइड बाय 8 मैंने यहाँ किया है, दैट इज 192. सो 192 इज आवर आंसर एंड दैट इज पॉजिटिव. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के सम्स में कर रही हूँ और एक सम में आपको दिखाऊंगी. -28 मल्टीप्लाइड बाय +9. देखिए यहाँ पर है -28 और +9. ये दोनों नंबर को मैंने सिलेक्ट किया है. यू कैन सिलेक्ट एनी नंबर. आप कोई भी नंबर्स का पेयर ले सकते हो. इसके लिए आपको सिलेक्ट करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट यू कैन पिक अप एनी फिश नंबर्स एंड यू कैन राइट दोज. सो -28 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाय 9 मैंने किया है 52. So 252 and here you can again notice negative multiplied by positive is negative. So answer is -252. ठीक है, इसी तरह से अब मैं आपको और 2 सम्स डिवीजन के भी दिखाऊंगी. डिवीजन के लिए मैं ले रही हूँ -15 एंड -18. जब हम डिवीजन लिखेंगे तो डिवीजन साइन हमें देना है, डोंट फॉरगेट दैट. सो -15 अपॉन -18, दोनों नंबर पॉजिटिव नेगेटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव में हम लिखेंगे. तो यहाँ देखिए दोनों नंबर हम 3 के टेबल में आते हैं, इसीलिए 3 5s are 15 एंड 3 6s are 18. सो 5/6 -5/6 इज इक्वल टू 5/6 अवर फाइनल आंसर. ठीक है, इस तरह से हमने आंसर फाइंड कर दिया है. और एक सम में डिवीजन का आप लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ. इसमें मैंने लिए हैं +9 डिवाइडेड बाय -27. सो 9 डिवाइडेड बाय -27. 9 1s are 9, 9 3s are 27. सो 1/3. एज पर आवर रूल
वी कैन राइट -1/3. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके, इस तरह से आप कोई भी नंबर लेकर सम सॉल्व कीजिए. हाँ, यू कैन एंजॉय दिस सम्स. अच्छा बच्चों, आप लोगों को पूरा अभी एक्सरसाइज मैंने प्रैक्टिस सेट 9 कंप्लीट कर दिया है. आपको ये कैसे लगा, आप इसके कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिए. और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए. थैंक यू.